অন্যায় প্রতিকার চাইছি। এটাই আজকের সমাবেশে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। আরে ভাই কি করছিস? বলছে ছড়া এটা ছড়া বলছে তো এখন কি করছিস? ছড়ালেন কেন? চেয়ারটা এদিকে সারা বাংলাদেশে আসতে যাতে কংগ্রেসের লোকেরা সবাই রাখতে না পারে তাকে সকাল থেকে হামলা একটু আদালতের মুর্শিদাবাদের দমকল থেকে কিছু ছিল তাদের গাড়ি ফাড়ি ভেঙে বিস্ফোরণ করে দিয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যে এত কংগ্রেসের কর্মীরা নেতৃবর্গ আজ এখানে সামিল হয়েছে এটা আমি মনে করি কংগ্রেসের অনেক বড় পাওনা। दिल्ली भाई ये कहना चाहते हैं ये तो सिर्फ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी। সারা ভারতবর্ষ রাখেন, সারা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে পরিবর্তনের পদধ্বনি আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি এবং এই বাংলাতেও আগামী দিনে আপনারা দেখতে পাবেন যে পরিবর্তনের সরকারের নামে তৃণমূলের জায়গায় বিজেপি এসছে, কিন্তু আগামী দিনে এই পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন নয়, কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন হবে। কংগ্রেস আবার ফিরে আসবে। হ্যাঁ, কংগ্রেস ফিরে আসবে। कांग्रेस भी आगे हमारे और काम होते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर दूसरा मंजिल की तलाश कर, तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। जिसका तुम जाते हैं पत्थर की चोट पे, पत्थर ही टूट जाए वो सीता की तलाश कर। हमारे सामने অনেক বড় লড়াই, অনেক বড় সংগ্রাম, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে আজ এটা আলোচনা শুরু হয়ে গেছে যে অনেক দেখা হলো এবার মোদী নয়, এবার রাহুলজির নেতৃত্বে এই ভারতবর্ষ সরকার করুন। আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমি এই কথাটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাটা পুরি দেওয়ার জন্য বলছি না, না। আমি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ আছে আমার, মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করি, বাংলাদেশ প্রোগ্রাম করি যখন যে থাকে কদিন আগে বর্ধমান গেছিলাম, তারপরে বসিরহাট গেলাম। বিশ্বাস করুন সেখানকার মানুষ বলছে দাদা অনেক হলেও আর না, আর ভোট করবো না, এবার রাহুল গান্ধীকে আর কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে হবে। তাই 29 যে লোকসভা নির্বাচন, সেই লোকসভা নির্বাচনে এই ভারতবর্ষের পরিবর্তনের আজকে দেখলেন দিল্লির বুকে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিবাদ করছে। কিসের প্রতিবাদ? টিকিটের জন্য নয়, ধান্দাবাজির জন্য নয়, তাদের প্রতিবাদ কি? তারা পড়াশোনা করছে, তারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা ডাক্তার হতে চায়, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, আর তাদের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়া হচ্ছে একটা অঙ্কের ব্যবসায়ীদের হাতির করার জন্য, তাদের পুঁজিতে আরো বৃদ্ধি করা বোঝার চেষ্টা করবে। 22,80,000 ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিল, নিচে সিটের সংখ্যা কত? 59,000। কি হলো? সমস্ত প্রশ্নপত্র আগে ফাঁস হয়ে গেল। তাদের মাধ্যমে যারা বড় বড় কোচিং সেন্টার চালায় তাদের কি নাম দিয়ে? গেস্ট পেপার নাম দিয়ে। ভাবুন, 22,80,000 ছাত্রছাত্রী দিন রাত মেহনত করে পড়াশোনা করেছে, পরীক্ষার আগে দেখছে তাদের ছাত্র বেকার, কারণ তাদের সমস্ত প্রশ্ন লিক করে দেওয়া হয়েছে। যাদের কাছে পয়সা পেয়েছে, যাদের কাছে ধান্দা করেছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের চাকরি। এই ভারতবর্ষে কোচিং ইন্ডাস্ট্রি এই মুহূর্তে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রির আকার ধারণ করেছে মোদী সরকারের আমলে। এই কোচিং ইন্ডাস্ট্রিতে এই মুহূর্তে 60,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। কোচিং ইন্ডাস্ট্রিতে 7 কোটি ছাত্রছাত্রী ট্রেনিং নেয়। ফলে সাধারণ মানুষের আগামী উপরে উঠতে গেলে তাকে কোচিং সেন্টার যেতে হবে, সেখানে ফি দিতে হবে, সেখানে শিক্ষকের টাকা দিতে হবে, আপনার সরকারি ফলে সেখানেও টাকা দিতে হবে। ফলে সর্বশান্ত হচ্ছে ভারতবর্ষে সাধারণ নাগরিকেরা। আর কোচিং সেন্টারের মালিকরা 60,000 কোটি টাকার বাণিজ্য করছে এবং তার বাণিজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। জানেন আপনারা, এই ফাঁস হওয়ার কারণে এই ভারতবর্ষে 20 জন ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। আপনারা কি জানেন এই 24
সালে এই ভারতবর্ষ শুধুমাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতিত্বের জন্য মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে কত জানে 14,768 জন। আমি এ কথা বলছি না, এই কথা বলছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, যার মন্ত্রী ভারতবর্ষে যত মানুষ আত্মহত্যা করে তার উপরে 8% ছাত্রছাত্রী। আমরা কি দেশ গড়ব? যারা পড়াশোনা করলো, যারা শিক্ষিত হতে চাই, আমরা তাদের পরীক্ষা করতে দিলাম না, তাদের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিলাম, কিছু লোকের সুবিধার জন্য পরিণাম তাদের আত্মহত্যা করতে হচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী প্রতিবাদ করছে ছাত্র গুণ, অর্থাৎ ছাত্রদের খাওয়ার দাও। আজকে তাই দিল্লির বুকে দেখলেন ছাত্রছাত্রীরা হাজারে হাজারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা আক্রমণের শিকার হচ্ছে। কোন সরকার? বিজেপি সরকার। মানুষের বলার অধিকার তো সাংবিধান করি। যদি ছাত্রছাত্রীরা আমরা আত্মীয় বলি তোমাদের বড় অধিকার কেড়ে নিলাম, তাহলে দেশ এগোবে। কোন মহাপুরের মতন একজন শিক্ষাবিদ, একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী 24 দিন ধরে অনশনের মধ্যে আছে, কারো কোনো মাথা ব্যথা নাই। কংগ্রেস আমলে আন্না হাজারে প্রতিবাদ করছিল, অনশন করছিল। প্রথমে কংগ্রেস 96 ঘন্টার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করে, তারপর যখন আবার প্রতিবাদ করলো, এই কংগ্রেস আইন তৈরি করেছিল, এই আইন লোকপাল আইন। এই ভারতবর্ষের ক্ষমতা আসার পর বিজেপি পার্টি লোকপাল আইন প্রয়োগ করলো না। অথচ সেই সময় আন্নাহাজারকে পিছন থেকে পদক দিয়েছিল যাতে কংগ্রেস সম্পর্কে বিভ্রান্তি করা যায়, কংগ্রেসের কাছে জোর প্রমাণ পাওয়া যায়। 14 বছর বিজেপি পার্টি ক্ষমতায় কংগ্রেসকে প্রমাণ করতে পেরেছে। ওখানে যাও মাইকের ওখানে ভোট আসে যায় আর বিজেপি পার্টি রাজনৈতিক ছাত্র তৈরি করে মাইকের ওখানে যাও। এটা আমাদের দাবি। হিন্দু সমাজ দেখতে পাচ্ছে রাম মন্দিরের নামে রাম মন্দিরের নামে ভারতবর্ষের রাজনীতি হলো। ওখানে যাও গিয়ে মাইকের কাছে ধরো। রাম মন্দির গঠন করা হলো, হিন্দুকে বোঝানো হলো তোমরা রাম রাজ্যে বসে মোবাইল দেখছো। নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে 2020 সালে রাম মন্দির নির্মাণে আপনার নেটওয়ার্কটা ছিল না। নিজে আমি যখন পার্লামেন্টে ছিলাম বিরোধীদের নেতার সাথে কংগ্রেসের নেতার সাথে তখন আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম আপনি যেন রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে রাম মন্দির করার দায়িত্ব দিচ্ছেন, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করুন, ধর্মচর্চা করুন, শঙ্করাচার্য করুন, আপনি যেন করছেন। কিন্তু রাজনীতি করা বলায় তার পার্টির লোক তাদের কাজ করতে দায়িত্ব দিলেন। 2024 সালে 2024 রাম মন্দির উদ্বোধন হল। ভাবলো ভোটগুলো সব এক টাকা মোদীকে ভোট দিবে। মোদীর সে বিভ্রান্তি থেকে গেল যখন অযোধ্যায় মোদীর পার্টির লোক হেরে গেল। মোদী বলল শুধু রাম দিয়ে হবে না। তাই দেখুন লক্ষ্য করে যে রাম মন্দিরে একটা গরিব মানুষ তার পকেটে 50 টাকা দিয়ে কি করছিস? পয়সা দিয়ে পুরো ধাক্কা মারছিস। এটা লেগেছে, এটা লেগেছে। এবং সে মনে মনে ভাবে পবিত্র রাম মন্দির আমি চালাবি না, তাহলে আগামী দিনে আমার মঙ্গল হবে, আমার ছেলের চাকরি হবে, সংসার সেই রাম মন্দিরের যা দেখভাল করছে বিএনপি ভারতের লোকেরা এই রাম মন্দির যারা মানুষের চাঁদা কোটি কোটি টাকা লুট করে চলে যাচ্ছে। লুট করে শুধু নয়, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যে রাম মন্দিরকে সামনে রেখে ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই প্রধানমন্ত্রী এখন বিদ্যুৎ হয়ে যাওয়ার পরেও চুপ করে বসে আছে। ভারতবর্ষের মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তাই ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সবাইকে একটা কথা বলতে চাই, এই বিভাজনের রাজনীতি থেকে আসুন আমরা মুক্ত হয়ে নতুন বাংলা বলি। এই বাংলায় বিভাজনের রাজনীতিতে যেন আমরা এটাই আমাদের দেওয়া। এই ভারতবর্ষের তৈরি করতে, এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান আদিবাসী জনজাতি সবাই প্রাণ দিয়েছে। হ্যাঁ, এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বোস প্রাণ দিয়েছে, সবাই মাইক দিয়ে দেয় ওখানে। ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে, আমাদের সমাজ ভেদাভেদের করা হচ্ছে। এ ভারতবর্ষে মুসলমান কিছু করেনি, হিন্দুরা করেছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এটা ইতিহাসের বিকৃতি। যেমন আমাদের দাবি ছিলেন
মহাত্মা গান্ধী, যেমন এই ভারতবর্ষের অনেক ব্যক্তি যাকে আমরা সীমান্ত গান্ধী বলতাম, খান আব্দুল গফফার খান। আপনাকে জানেন, খান আব্দুল গফফার খান তার জীবনে 35 বছর জেলে বন্দী ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে। কেউ বলবে না কথা। আজকে ভারতবর্ষের সরকার ওনার বই থেকে সেগুলো তুলে দিচ্ছে। আপনারা কি জানেন যে স্লোগানটা দিয়ে সেদিন বিপ্লবীরা শহীদ হতো, আন্দোলন করতো, ফাঁসির মঞ্চে চলে যেত, ইনকলাব। সেই ইনকলাব স্লোগানের মালিককে, সেই ইনকলাব স্লোগানকে সৃষ্টি করেছিল মৌলানা আশরাফ রুহানি। আপনারা কি জানেন যে সেদিন আস্তে আস্তে ফাঁসির মঞ্চে চলে গেছিল আশরাফুল্লাহ। কাকুরি মামলায় আশরাফুল্লাহ ফাঁসি হয়েছিল। আপনারা কি জানেন যখন তার ফাঁসি হচ্ছে তখন ব্রিটিশ তাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার সেই ইচ্ছা বলো, তখন আশরাফুল্লাহ কি বলছে জানেন? তিনি বলছেন মেরা এখতিয়ার जो है रखने कोई जरा खाटी पतन मेरे कफन আমার যখন দেবতা কফনবন্দি হয়ে যাবে তার উপরে যারা চলে ভারতবর্ষের নাম দিয়ে এই ছিল আশরাফুল্লাহ। আপনারা জানেন ভারতবর্ষের যে খবর যে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেছে, যে সিপাহী বিদ্রোহ ঝাঁপিয়ে দাঁড়ি হাজার মহল সকলে থেকে বিখ্যাত, সেই সিপাহী বিদ্রোহের দিল্লির 27,000 মৌলানাকে বদল করা হয়েছিল। সেদিন ব্রিটিশ সরকারকে এই কথা কি বলা হয়? ইতিহাসকে বিকৃত করে মুসলমানদের দুষ্কর্ম মানানো হচ্ছে। হিন্দু মুসলমানদের কোন দুষ্কর্ম নেই, কৃত্রিমভাবে বিভাজন, কৃত্রিমভাবে দুষ্কর্ম তৈরি করা হচ্ছে। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। তাই এলাকার মানুষ, বাংলার মানুষ এই রাজনীতির সর্বত্র দাম নাই। এর মধ্যে বিজেপি পার্টি হাতি হাতি পাপা করে ছুটে গেছে। মমতা ব্যানার্জি আজকে শহীদ দিবস নাটক করছে, এই মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে বাংলায় এই বাংলায় বিজেপি পার্টিকে একসঙ্গে নির্বাচনী সহযোগিতা করে নির্বাচনী গঠবন্ধন বানিয়ে এই বিজেপি পার্টিকে এই বাংলায় প্রবেশ করেছেন মমতা ব্যানার্জি। আপনারা ভুলে গেছে তিনি সব কিছু দেখবেন, তিনি নাটকে বিশ্বাস করবেন। আসলে ভালো বলি সাল 2011 আমি তখন পার্লামেন্টের মেম্বার সোনিয়া গান্ধী একজন ডাকে আমাকে দেখে বললেন অভিক বাংলায় নির্বাচন আসছে, আমি বললাম ম্যাডাম এই মুহূর্তে বামফ্রন্টে মমতা ছিল করতে গেলে মমতাকে আমাদের দরকার, আমি মমতাকে সহযোগিতা করি। আমি বলছিলাম কিন্তু অদ্ভুতভাবে মমতা আসার পর এই মমতাকে সব থেকে আগে আক্রমণ করলো তাকে জানেন এই কংগ্রেস পার্টি। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কংগ্রেস পার্টির অফিস কর্মী রেলে তুলে আমরা যে এই মমতা ব্যানার্জি। হ্যাঁ, ইতিহাস আমাদের পঞ্চায়েত ভোট করে যায়নি, মিউনিসিপালিটি ভোট করে যায়নি, কোথাও রাজনীতি কথা বলতে যায়নি। মিথ্যাকে আমাদের মুর্শিদাবাদের শয়ে শয়ে আমাদের কংগ্রেস কর্মীদেরকে পানি কেস দেওয়া হয়েছে। পানি কেস মানে কি জানে? তবে কংগ্রেস করতে না পারে। মমতা ব্যানার্জি আপনার আমলে শুরু যখন হলো এই বাংলায় আপনারা বলে দেওয়া এই বাংলায় 2011 সালের পর 15 বছর কেটে গেল। আপনারা দেখতে পেয়েছেন আজকে বাংলায় কি দেখছি আমরা? সেদিন 93 সালে যে গুলি চলেছিল, তাদের যারা মারা গেছিল, শহীদ হয়েছিল, আজকে খবর বার হচ্ছে সেই শহীদ পরিবারের জন্য যে কমিটি করেছিল চ্যাটার্জি কমিশন, সেই কমিশনের একটাও অনুমোদন এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দেয়নি। চ্যাটার্জি কমিশনের রিপোর্ট যাতে পেশ হয় তাতে দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে সমস্ত আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়েছে মমতা ব্যানার্জি। আর বাংলায় ভোট আদায় করেছে। শহীদের রক্ত তারা ব্যবহার করছে, শহীদের রক্ত নিয়ে ব্যবসা করেছে এই মমতা ব্যানার্জি। সেদিন আমাদের নেতারা স্বর্গীয় বীরেন দাস থেকে আরম্ভ করে অতি ভরসা করেছিল, সবাই কিন্তু সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। আমি সামিল হইনি, আমি পালিয়ে গেছিলাম ছেড়ে। কিন্তু সেদিন
যারা সামিল হয়েছিল সকল শুনবেন না মমতা রাজি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। তাই যে কথাটা বলতে চাইছিলাম, সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে সভা, সেই সবাই শহীদ পরিবারের মানুষ, শহীদদের পরিবারের লোক প্রাপ্তন আছে, তাদের সঙ্গে আছে আপনার দলের তো দেখতে পাচ্ছেন সরকারের কিছু যাচ্ছে না। 3 দিন আগে আমাদের দিল্লি থেকে পরিচিত লোক আমাকে ফোন করেছে, দাদাকে क्या हो रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या हो रहा है। सुबह पुलिस जाते हैं और शाम होते ही बागी पार्टी में शामिल हो जाता है। বলছে সকালবেলা পুলিশ যাচ্ছে, সন্ধ্যে হতে হতে ব্যাংক ছিঁড়ে তারা বিজেপি পার্টির আরেকটা দল নব বিজেপি তাদের যোগদান করছে। আমি তখন বললাম স্যার ये लोग बागी नहीं है, हिंदी में 30 मिनट बोले बागी, तब बोले बागी लोग कौन है, अभी बोला ये लोग बागी नहीं है, ये तरह दागी है। जब पुलिस उनको घर में पहुंचे तो वो तरह दागी है, यही है ये दागी वो भागी, ये सारे दागी लोग हैं जो भाग रहे हैं ममता बनर्जी को छोड़ कर। अच्छा जाने तक तो वोट नहीं है, তারা কতটা কাপুরুষের বাস করতে মমতা ব্যানার্জি চলে গেলে মমতা ব্যানার্জি মনে করেছিল সকালে যেমন গাছের পাতায় শিশির বিক্রি করতে মনে হয় মণিমুক্ত, মমতা ব্যানার্জি মনে করেছিল বিহার আমি এক একটা মণিমুক্ত বিহার আর এমন মমতা ব্যানার্জিকে বলতে ইচ্ছা করছে তাই পর সামনে দিয়ে বনে মোদি বনে হিরে এই বাংলা যারা মনে করবে বিজেপি দিলে লোক পাবে, ন্যায় দিলে লোক পাবে, সবাই একটা কংগ্রেস ভালো কংগ্রেস একটা গোল আছে আপনার সঙ্গে এই বাংলায় কংগ্রেসের মজবুত করুন। তাহলে আমার সময় শেষ হয়েছে, আমি আরেকটা কথা বলে শুনব, তাহলে এই বাংলায় কংগ্রেস কর্মীরা আপনার ঐক্যবদ্ধ হন, আপনার ঐক্যবদ্ধ হলে এই বাংলায় পরিবর্তন হতেই হবে। কিন্তু একটা কথা বলবো না সংঘর্ষ না तकलीफ मजे के हाथी में बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी, जब बाहर जाएगी वो छूटेंगे। अपने नया करे अपना आगे करो सबाई हम आपको जय हिंद। নমস্কার। আপনাদের কাছে জানাই আমাদের এই মিছিলে আমাদের এই মিছিলে ভালো করে শুনুন, আমাদের এই মিছিলে আসার সময় 11 জন আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, বর্তমান হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, নদিয়াতে ভর্তি হয়েছে, বজবজে ভর্তি হয়েছে। এখানে কয়েকজন এসছে যাদের পায়ে লেগেছে, পিঠে মেরেছে। আপনাদের কাছে বলি অনেক ধৈর্য, একদম চুপ। আমি আপনাদের কাছে উদয় ভানু চিফ, যিনি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি, তার বক্তব্যের আগে জানাতে চাই 8ই আগস্ট থেকে 14ই আগস্ট সারা বাংলায় পথসভা হবে, বিষয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা। 14ই আগস্ট বিমানবন্দর ঐতিহাসিক শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রাত 12টায় পতাকা উত্তোলন। 15ই আগস্ট সেদিন কংগ্রেস প্রতিটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে আরএসএস এর স্বাধীনতা ও জাতীয় পতাকার মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। স্বাধীনতার 55 বছর পরে 26শে জানুয়ারি আরএসএস তাদের নাগপুরের প্রধান দপ্তরে প্রথমবার ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। এই ছোট্ট জাতীয়বাদীদের বিরুদ্ধে মুখোশ খোলার দায়িত্বে প্রতিটি কংগ্রেস কর্মী অংশগ্রহণ করা দরকার। 28শে আগস্ট মহাজাতি সদনের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। 23শে জানুয়ারি বিজেপি রাজ্য সভাপতির নাম না করে সুভাষচন্দ্র বসুকে গুন্ডা বলার প্রতিবাদে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, পৌরসভা এবং কলকাতার ধিক্কার সভা করা হবে। 30শে জানুয়ারি বেলাঘাটায় গান্ধী ভবনের সামনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হবে। 9ই আগস্ট আমরা সবাই দিল্লি যাব ছাত্র কি গুঞ্জ, রাহুল গান্ধীর বক্তব্য শোনার জন্য ছাত্রদের আত্মহত্যার
এবার আপনারা সবাই শুনুন, যুবকদের উদ্দেশ্যে বলি, अगर दिल में जज्बा है तो बात मेरी सुन, दरार है मिट्टी में तो सिंचना रहा के खून। আপনারা খুন দেবেন কংগ্রেসের কর্মী নেতারা, তারা কিন্তু খান দেওয়ার জন্য, পাসিনা দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবে। আমাকে অনেকে বলেছিলেন রাহুল গান্ধী এখানে আসবেন কিনা, আমরা বলেছিলাম রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আসবেন। তিনি কথা দিয়েছেন কবে আসবেন, 15ই জানুয়ারি থেকে 15ই ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড কংগ্রেস সবাই মিলে করবে। আমাদের আগামী গন্তব্যস্থল বিজেপির জেনে রাখো, রাহুল গান্ধী আসছে, বাংলা খাচ্ছে, ভারতবর্ষ খাচ্ছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড 15ই জানুয়ারি থেকে 15ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা এই মঞ্চ থেকে শহীদদের স্মৃতি তর্পণে শপথ নিলাম। ওনার মায়ের কোল খালি যাতে না হয়, এবার আমি আহ্বান করছি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি, আমিও সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, উদয় ভানু সিংজি, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখবেন। Now I request Uday Bhanuji, please come and deliver your speech in front of the all Sapara Bengal people. बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बंगाल के एआईसीसी के प्रभारी प्रकाश जोशी जी, पीसीसी अध्यक्ष शुभंकर जी, दीपादास मुंशी जी, अभिरंजन जी, अंबा प्रसाद जी, ईसा खान जी, महताब जी, जुल्फकार जी, अमिताभ जी, आशुतोष जी, भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव अजय चिकारा जी, भारतीय युवा कांग्रेस के वेस्ट बंगाल के इंचार्ज एहसान खान जी, जिशान भाई, सौरभ जी, साहिना जी, कासिफ जी, होरगुन जी, यूथ कांग्रेस के बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट सिमरान और बाबुल जी, और सभी साथियों को नमस्कार, आदाब। साथियों, आज हम 1 किलोमीटर मार्च करके यहां तक आ रहे थे, और जितनी संख्या में और जिस हिम्मत से आप आए हो ना, बीजेपी की रूहें और ईंटें तक आराम जाएगी जो हिम्मत आप आज दिखा रहे हैं। यह आसान बात नहीं है और छोटी बात नहीं है। जिस तरह से हिम्मत का परिचय आप दे रहे हो, यही हिम्मत चाहिए, यही हिम्मत चाहिए राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों में इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए। ये जो राहुल गांधी जी के सिपाही, राहुल गांधी जी के बब्बर शेरा क्या है, और इनसे बड़ी तादाद में बाहर भी खड़े हैं, ये लोग पश्चिम बंगाल में अपोजिशन का काम करेंगे और बंगाल के लोगों की आवाज बनेंगे, इसका पूरा विश्वास है हमको। और वो लोग जो ऑपोजिशन पार्टीज के नाम पे, साथियों, और वो लोग जो ऑपोजिशन पार्टीज के नाम पे बीजेपी की टीम बी टीम बनी है, उनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। बंगाल के लोगों की हक की लड़ाई लड़ना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हिम्मत वाले हो, देश के लिए बलिदान देना जानते हो। वो इसलिए जानते हो कि आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे 13 भाई लोग, हमारे 13 सदस्य जो भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए बलिदान दिया। आज उनके बलिदान को सलामी देने हम सब आए हैं, उनकी शहादत को शहादती देने हम आए हैं। आज उनके बलिदान को, उनकी शहादत को सलामी देने हम सब आए हैं साथियों। पर उनके बलिदान को, उनकी सलामी, उनकी शहादत तब होगी जब आज भी हम सबको देश के संविधान के लिए लड़ना पड़ेगा साथियों। जिस तरह से वो यूथ कांग्रेस के साथी इतिहास रच के गए हैं, उसी तरह उनसे सीख लेते हुए आज हमें बंगाल में और पूरे देश में संघर्ष करना है,
सड़कों में संघर्ष करना है, जिस तरह से बीजेपी इस देश के संविधान और देश को खत्म कर रही है। आप सब लोग जानते हो कल क्या हुआ। कल देश के छात्र, देश के युवा जो अपने हकों की बात रख रहे थे, शांतिपूर्वक रख रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज बरसाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वो छात्र, वो युवा जो शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बुझाने का काम इन बीजेपी वालों ने किया है, अमित शाह के कहने पे किया है। हमारी डिमांड ये है, चाहे जितनी मर्जी घमंडी सरकार हो, अंसारी सरकार हो, जब युवा सड़कों में आता है तो कोई नहीं टिक पाता। अब आप सड़कों में हो, चाहे बीजेपी जो मर्जी करिए। जो शहीद परिवार के लोग हैं, मेरे सुनने में आया कि 4 शहीद परिवारों के लोगों को यहाँ आने से रोका गया बीजेपी द्वारा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, शहीदों को स्टेज से लाने से रोको, और बंगाल के लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। साथियों, आप काफी देर से यहाँ पे आए हो। इमरान भाई का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत देर से यहाँ पे आए हो, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक उम्मीद लेके आया हूं कि जिस तरह से उन वीरों को शहादत देने के लिए हम यहां पे आए हैं, वो वीर जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए शहीद हो गए, उनकी शहादत को सलामी देने आए हो, तो ये उम्मीद लेकर हम आए हैं कि वो संघर्ष आज भी हम करेंगे, देश के लिए करेंगे साथियों। और जिस तरह से देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ धक्का हो रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस चलाई जा रही है, ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम दबने नहीं देंगे। चाहे नरेंद्र मोदी जितना मर्जी जोर लगा ले, अमित शाह जितना मर्जी जोर लगा ले, हम यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, डरेंगे नहीं, हिम्मत से संघर्ष करेंगे साथियों। धन्यवाद। এবার আমরা ইমরান প্রতাপগঞ্জিকে ইমরান প্রতাপগঞ্জিকে সম্বোধন দিচ্ছেন আমাদের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। ইমরান ভাই ওয়েলকাম। এবার আমরা ডেকে নেব উদয় ভানু জি, ওনার বক্তব্য রেখেছেন। দীর্ঘক্ষণ সময় চলছে মাঠে, 1 হাঁটু জল। তারপরে আমি প্রত্যেকটা চেয়ারে বসার জন্য বলছি, এত মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। এবার আমি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়িকা দীপা দাস মুন্সিজিকে আহ্বান করছি তার বক্তব্য রাখার জন্য। নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বে নতুনভাবে এসেছেন প্রকাশ যোশীজি, উপস্থিত আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারজি, সিনিয়র নেতা মিঠুদা, প্রদীপ্তা, ঈশা খান, আমাদের 2 এমএলএ, আমি সকলের নাম নিচ্ছি না কারণ বক্তা অনেক আছেন। ইমরান প্রতাপ ব্যানার্জি পৌঁছে গেছেন, বাবর খেরাও পৌঁছচ্ছে, আমাদের সারা ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি উদয় ভান উপস্থিত আছেন, এবং সমানিত মঞ্চ যারা যারা আজকের এই শহীদ দিবস উপলক্ষে এখানে উপস্থিত আছেন, সকলকে আমার প্রণাম এবং সালাম। আমার আগে বহু বক্তা বক্তব্য রাখছিলেন, আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখবো না, কয়েকটি কথা বলবো। ভেঙে বেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এই 21শে জুলাই শহীদ দিবসকে আজ আমরা
প্রকৃত রূপে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করছি। আমরা দেখেছি অতীতে শহীদ দিবস থাকেনি, শহীদ দিবস ক্ষমতার প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকে আমরা সত্যিকারের শহীদ দিবস পালন করছি কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে। 13 জন শহীদকে আপনাদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ, এই কথা বলে এই স্লোগান তুলে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যারা আমাদের বহু সমর্থক সাথী, যারা এখানে আসার জন্য তাদের দূর দূরান্তর থেকে রওনা দিয়েছিলেন, তাদের বাস থেকে নামিয়ে বাস ভাঙচুর করে তাদেরকে মেরে তারা এখন হাসপাতালে ভর্তি আছে। খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাই যে বিজেপি গণতন্ত্রের কথা বলে, সেই বিজেপি সারা ভারতবর্ষে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। আজ বাংলায় তার প্রমাণ দিল। প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে মানুষরা আজকে সভায় যোগদান করতে এসেছিলেন, যে সভা কোনো রাজনৈতিক সভা নয়, যে সভা শহীদদের স্মৃতিচারণ করার জন্য, তাদের সম্মান জানানোর জন্য, তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য সভা, সেই সভায় আসার জন্য যারা তাদেরকে আটকালেন তারা আর কেউ নয়, তারা যে স্লোগান দেন সেই স্লোগানের নাম জয় শ্রীরাম, পার্টির নাম বিজেপি। আমরা কি দেখলাম? অযোধ্যা মন্দির তৈরির জন্য শিলা নেওয়া হলো, অযোধ্যা মন্দির তৈরির জন্য কোটি কোটি টাকা নেওয়া হলো চাঁদার নামে। আর চাঁদা চোর কারা? বিজেপি। অযোধ্যা মন্দিরে কোটি কোটি টাকা লুট করলো কারা? বিজেপির লোকেরা। সেই লোকেদের অযোধ্যা মন্দিরে কারা বসিয়েছিলেন? নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। অমিত শাহ লোকসভার মধ্যে প্রচার করলেন, তিনি বললেন যে আমরা একটা কমিটি করেছি, এই কমিটি কোন আরটিআই এর দায়রায় থাকবে না, এই কমিটি অযোধ্যা মন্দিরকে দেখবে। অযোধ্যা মন্দিরে কি দেখলাম আমরা? কোটি কোটি টাকা চুরি হলো। যে মানুষরা নিজেদের পরিবারের কথা ভেবে সোনা গয়না মন্দিরকে অর্পণ করেছিলেন, চুরি হয়ে গেল, যার কোনো হিসেব নেই, যার কথা কেউ বলবে না। আজকে যে মানুষগুলো শহীদ হচ্ছে নিট পরীক্ষার জন্য, নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা আত্মহত্যা করছে, ছাত্ররা মারা যাচ্ছে, তাদের পরিবারের লোকেরা মারা যাচ্ছে, দায়িত্ব কে নেবে? বিজেপি। এটা শহীদ মঞ্চ, শুধুমাত্র 13 জন শহীদ নন, ভারতবর্ষে যতজন শহীদ আছে সমস্ত শহীদকে স্মরণ করে আমরা বলছি, শহীদের রক্ত হবে না তো ব্যর্থ। কংগ্রেস আমরা প্রমাণ করব। আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখবো না, কয়েকটা কথা বলে আমি শেষ করছি। শেষ কয়েকটি কথা। রাহুল গান্ধী, যিনি সারা ভারতবর্ষে মোদীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আজকে বিজেপি কেন আমাদের ছেলেদের মারলো? তার কারণ ওরা ভয় পেয়েছে। ওরা ভয় পেয়েছে যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে, আর 29 সালে নরেন্দ্র মোদী আর থাকবেন না। যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তার নাম রাহুল গান্ধী। তার জন্য হচ্ছে না, আমাদের শপথ নিতে হবে। আমি বাংলায় বেশি আসতে পারি না, 2 বছর আমি কেরালার দায়িত্ব ছিলাম। কেরালায় বামফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে আমরা কংগ্রেসের সরকার করেছি। ভারতবর্ষ থেকে বামফ্রন্ট শেষ হয়ে গেছে, তারা কোথাও ক্ষমতায় নেই। এরপর আমাদের বিজেপিকে সরিয়ে কংগ্রেসের সরকার করতে হবে, আর প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভারতবর্ষ থেকে যারা কংগ্রেস মুখ ভারত করার চেষ্টা করেন, আমরা কংগ্রেসীরা প্রমাণ করব কংগ্রেসকে শেষ করা যায় না, কংগ্রেসের থেকে মুক্তি নেই। ভারতবর্ষে কংগ্রেস আছে, কংগ্রেস থাকবে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ। আমরা ধন্যবাদ জানাই ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার দেবদাস মুন্সিজিকে। 1 মিনিট থামো। এবার
আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন যুব কংগ্রেসের এই শহীদ দিবসে যেদিন আমি যুব কংগ্রেসের ভাইদের বলি যে এবার আমরা শহীদ মিনার তলায় আমরা স্মৃতি তর্পণ করব, সেদিন যুব কংগ্রেসের ভাইরা বলেছিলেন আমরা রক্ত ঝরাতে তৈরি, আমরা রক্ত ঝরাতে তৈরি, কংগ্রেসের নেতারা যদি ঘাম ঝরা, রক্ত আর ঘামের লড়াই আজকে কিন্তু আমাদের ভাইয়েরা পিছিয়ে আসেনি। 11 জন এক্ষুনি নিপাদাস মুন্সিজি বলছিলেন 11 জন হাসপাতালে আর্থিকভাবে ভর্তি, অনেকের পিঠ ফেটে গিয়েছে, পায়ের আঙুল ভেঙে দিয়েছে। আমাদের সামনে প্রধান বক্তা জনাব ইমরান প্রতাপ বেরিজি, এর বাদে তার আগে আমাদের দলে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি নতুন ভাবে এই রাজ্যের দায়িত্ব যাকে দিয়েছেন। আমরা একসঙ্গে ছাত্র করেছি, যুব করেছি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একসঙ্গে সম্পাদক ছিলাম। বহু রাজ্যে কঠিন অবস্থার সময় দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উত্তরাখণ্ডের মানুষ কোন সময় গুজরাট, কোন সময় ছত্তিশগড়, কোন সময় উড়িষ্যা কাজ করেছেন। সেই ছাত্র আরেকজন নেতা পশ্চিমবাংলার নবনিযুক্ত তিনি পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশীজি, তাকে আমি আহ্বান করছি। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सुभंकर सरकार जी, हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि यूथ कांग्रेस के नाम से आज ये कार्यक्रम है, मेरे छोटे भाई उदय भानु चीफ जी, हमारे बीच में दीपा दास मुंशी जी, और विशेष तौर पर आज संसद का सत्र, पार्लियामेंट का सत्र छोड़कर हमारे बीच बैठे हुए हैं आप सबके दिलों की धड़कन इमरान प्रताप गढ़ी जी, अम्बा प्रसाद जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, जुल्फिकार जी, मौसम नूर जी, नेपाल महतो जी, माया घोष जी, अभिजीत मुखर्जी जी, तपस मजुमदार जी, और हमारे मेहताब शेख जी, और तमाम मंच पर माफी चाहूंगा, बहुत हो गया है, काफी देर से आप लोग लगभग 4 घंटे से ज्यादा आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे रास्ते से जब मैं आ रहा था तो जगह जगह पर कांग्रेस के लोगों का हजूम रास्ते में दिख रहा, और ये इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है। आज का दिन उन हमारे नौजवान साथियों को याद करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने हमारे युवाओं के बंगाल में जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए इस तानाशाह सरकार के सामने उन्होंने अपनी शहादत दी थी। 13 हमारे नौजवान साथी शहीद हुए थे आज के दिन, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। लेकिन साथ में आज का दिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस के स्वर्णिम दिनों की शुरुआत का संकल्प हम सब यहां से होकर करने वाले हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले खचाखच यहाँ पर हमारे 12 झंडे अभी भी हैं। ये आम पब्लिक नहीं है, ये कांग्रेस का परिवार है, जो जब अपने अपने शहरों से जिलों से जब आप चले ये सब अपने खर्चे से आए, ये सब अपनी मेहनत से आए। कल रात को कल से लोग आ गए यहाँ पर, और ये बताता है आने वाले समय में कांग्रेस के फिर से दिन वापस यहाँ पर आप सबकी मजबूती से, आप सबकी एकजुटता से, इस मंच की एकजुटता से वापस लाए। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के नेतृत्व में हाईकमान ने मुझे बंगाल जैसे इस प्यारे राज्य में आपकी सेवा करने का मौका देने के लिए भेजा। आपके बीच
कार्यकर्ताओं की लड़ाई, कार्यकर्ताओं के बीच काम करने के लिए भेजा है। मैं आभारी हूँ। ऐसे राज्य में भेजा है जो राज्य सर्वोच्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राज्य है। ये राज्य देशबंधु चंद्रशेखर जी का राज्य है। ये राज्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राज्य है। ये राज्य मौलाना अबुल कलाम आजाद का राज्य है। ये राज्य इस पूरे देश को ये संदेश देने का राज्य है कि गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, आपसी सद्भाव क्या होता है, भाईचारा क्या होता है। ये राज्य वो राज्य है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले 21 वर्षों से हमने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार सब कांग्रेस परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सबके संकल्प ने, हमारे नेतृत्व के संकल्प ने, प्रदेश के संकल्प ने 294 सीटों पर यहाँ चुनाव का काम करा और सबसे बधाई के पात्र हैं। मुझे आपने बताया आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो हमारे कांग्रेस के साथी आ रहे हैं, 14 साथी आरजी कर अस्पताल भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उन पर जगह जगह पुलिस ने उनको रोका, जगह जगह रोका। कितना दमन करेंगे, कितना उत्पीड़न करेंगे, कितना अत्याचार करेंगे, इन्हें पता ही नहीं कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपनी एकजुटता से, अपने संकल्प से अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया था। तो ये क्या है, ये तारा सरकार नई सरकार आ गई है, जैसे तैसे जोड़ को उसी सरकार को बनानी है, लेकिन ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इनको खदेड़ सकती है। तो मैं अभी बात इसलिए भी कहूंगा कि इमरान भाई को हम सब ने सुनना है, मुझे तो बार बार मौका मिलेगा आपके बीच आने का, एक एक जिलों में जब आपके बीच आएंगे तो आपसे व्यक्तिगत बातचीत का मौका मिलेगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा, तुम जो चाहो तो हालात बदल सकते हैं। आप लोग कांग्रेस परिवार के सब साथी, तुम जो चाहो तो हालात बदल सकते हैं। मेरी आंखों के आंसू भी तेरी आंखों से निकल सकते हैं। तुम न ठहरे ही रहना झील के पानी की तरह। झील का पानी देते हैं और कहीं बन जाती है, गंदा हो जाता है। तुम न ठहरे ही रहना झील के पानी की तरह, दरिया जो बनो तो बहुत दूर निकल सकते हैं। जय हिंद, जय बंगाल, जय आजकल छात्र को जय नमन। बहुत बहुत আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রকাশ যোশীজিকে। আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলি, এখান থেকে মিটিং শেষ হয়ে গেলে যারা এনজিও আছে আর্জি করে তাদের আমরা দেখতে যাব। যুব কংগ্রেসের নেতারা তাদেরও আমি বলবো যে 4 জন যারা লিডারশিপে আছেন, আপনারা যেখানে যেখানে কোনো আঘাত হয়েছে কংগ্রেস কর্মীদের উপরে, আমরা আজকালের মধ্যে বসে আমরা বাংলার সমস্ত জায়গায়, সমস্ত থানায় আমরা ডেপুটেশন দেব, থানার সামনে বিক্ষোভ করব। যুব কংগ্রেস সবাই মিলে আজকে যা ঘটনা ঘটেছে, ইমরান প্রতাপ বাড়িজির বক্তব্য শোনা আমাদের খুব আমরা ভাগ্যবান মনে করি। কারণ ইমরান প্রতাপ বাড়িজি কাল পর্যন্ত পার্লামেন্ট ছিল, আজকেও আছে, তার নাম আসার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আপনাদের কাছে আসতে গেলে তিনি যে হুইপ ছিল इमरान प्रताप बंगाल कांग्रेस और युवा कांग्रेस जब मुस्कुराता है, गुलशन तो मुस्कुराता है। बंगाल युवा कांग्रेस और कांग्रेस जब मचल जाती तब तूफान मचल जाती। बंगाल युवा कांग्रेस और कांग्रेस जब बदल जाती तब इतिहास बदल जाती। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारा सबका बहुत सुनने का मसूल स्पीकर इमरान प्रताप बाड़ी सबको।
बंगाल की ऐतिहासिक सरजमीन शहीद मीनार मैदान और 21 जुलाई को यूथ कांग्रेस के उन 13 शहीदों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का स्वागत करता हूं। यहां मौजूद आपके प्रभारी प्रकाश जोशी जी, आपके पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी, दीपा दास मुंशी जी, उदय भानु चिप जी, अंबा प्रसाद जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपके सीएलपी जुल्फिकार अली साहब, फरक्का के एमएलए मेहताब शेख साहब, मौसम नूर जी, नेपाल महतो साहब, अमिताभ चक्रवर्ती दादा, अभिजीत मुखर्जी जी, हमारे स्टेट चेयरपर्सन शमीम साहब और प्रभारी जमाल खान साहब, यूथ कांग्रेस के हमारे सारे पदाधिकारी, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी और इस बरसात में भी, पानी में भी बैठे हुए वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी वजह से 51 सालों के बाद भी यहां कांग्रेस जिंदा है। हमें पता है आप 51 सालों से पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं है, आधी सदी गुजर गई है, 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिनकी एक पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा नहीं छोड़ा, कांग्रेस का झंडा पकड़ के रखा। मैं खिराजे अकीदत पेश करूंगा, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन 13 जवानों को जो यूथ कांग्रेस के नौजवान जब उस वक्त की जालिम सरकार के खिलाफ निकले तो उनके सीनों पे गोलियां मारी गई और फिर ऐसा हुआ कि उन 13 नौजवानों की लाशों को बुनियाद बना करके न जाने कितने लोग इक्तिदार में आए, हुकूमत में आए और कांग्रेस पार्टी के वो सिपाही जो शहीद हुए थे वो सिर्फ चर्चाओं में रह गए। बंगाल वालों, कलकत्ता वालों, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात में फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठे, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। मुझे पता है कि आज इस कार्यक्रम में बंगाल के अलग अलग हिस्से से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, उन पर हमला किया गया। मुझे प्रकाश जोशी जी बता रहे थे कि 15 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे आए जिनके बदन पर चोट के निशान थे, हॉस्पिटल में है वो। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार, चाहे वो कलकत्ता से चल रही हो या दिल्ली से चल रही हो, इनके डीएनए में लोगों पे हमला करना, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना है। मैं देख के आ रहा हूं कल दिल्ली की सड़कों को कि किस तरह से 11वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले वो बच्चे जो अपने कंधों पर अपना बैग टांग करके आए थे, किताबें लेकर के आए थे, ये कहने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 21 बच्चे खुदकुशी कर लिया उन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद। और वो बच्चे जब ये कहने के लिए प्रधानमंत्री की चौखट पर आए तो उनके बदन पे जिस तरह लाठियां बरसाई गई हैं, मैं समझ सकता हूं कि सरकार के डीएनए में ही लोगों के बदन पर लाठियां बरसाना। लेकिन बंगाल वालों, हार तब होती है जब मान लिया जाता है
जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मुझे पता है कि बंगाल एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे आवाम से मतलब नहीं है। एक ऐसी सरकार बैठी है जो बंगाल से नहीं चल रही है बल्कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ऐसे वक्त में बंगाल के कोने कोने में कांग्रेस के सिपाहियों को एक बार फिर से एकजुट होकर के खड़ा होना, और ये जो 13 नौजवान शहीद हुए थे यूथ कांग्रेस के, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप सारे लोग बंगाल के कोने कोने में ये कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा फहरा देंगे। और आने वाले दिनों में जब पश्चिम बंगाल की असेंबली पे कांग्रेस पार्टी की विजय पताका फहराएगी, तब जाकर के सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे उन 13 शहीदों को जिनकी याद में आज हम यहां इकट्ठा हुए। मेरे भाई बंगाल वालों, एक बात याद रखिएगा कि इसकी तहजीब बहरहाल बचाना होगा। ये जो मंच है वो आपको बता रहा है कि बंगाल की तहजीब क्या है, बंगाल का कल्चर क्या है। ये भद्र मानुष लोगों का राज्य है, इसकी अपनी एक पहचान है। इस पहचान को खत्म करने की साजिश कर रही है सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी तहजीब बहरहाल बचाना होगा। आपको अशकों से रुमाल बचाना होगा। इससे पहले कि सियासत इसे बर्बाद करे, आपको अपना ये बंगाल बचाना होगा। और ये तभी बचेगा जब आप जागेंगे, आपके हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा होगा। ये जो पुलिस की लाठियां, ये जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडों की लाठियां आपकी तरफ बढ़ी आती हैं, आप उठाइए कांग्रेस पार्टी का झंडा। मैं पूरे देश के साथ साथ बंगाल के लोगों से खासतौर से कहना चाहता हूं कि बंगाल के साथियों, कांग्रेस का झंडा उठा लीजिए। इस झंडे में जो 3 रंग है, यही तिरंगे का रंग भी है। आप सारे लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा लीजिए। कांग्रेस पार्टी आपका पुराना और असली घर है। इस घर में वापस आ जाइए। इस घर से गद्दारी करके जो लोग चले गए उनको माफ कर दीजिए, उनको जाने दीजिए। अपने घर को मजबूत करिए। और अगर आपने मजबूत कर लिया तो वो दिन भी आएगा जब 2029 में दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी इस देश को संबोधित करेंगे। और वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब इसी पश्चिम बंगाल में पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और बंगाल देखेगा इस बात को। दुनिया उम्मीद पर चलती है, दुनिया भरोसे पर चलती है, दुनिया यकीन पर चलती है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इन सरकारों के झांसे में मत आइएगा। ये बच्चों पे लाठियां बरसाने वाली सरकारें हैं, ये बेगुनाह लोगों का घर उजाड़ने वाली सरकारें हैं। ये सरकारें वो सरकारें हैं जो लोगों को तोड़ मरोड़ करके विपक्ष भी अपना ही बनाते हैं, सब सरकार भी अपनी ही बनाते हैं। ये पक्ष में हो विपक्ष में हो, सारे लोग इनके हैं। एक सुबह ईडी का नोटिस जाता है, अगली सुबह पता चलता है वॉशिंग मशीन में धुल के एक आदमी साफ होकर के फिर इनके घर का हिस्सा बन जाता है। इनसे होशियार रहिएगा। वो दिल्ली में एक आदमी बस में चढ़ा, जैसे ही टिकट बनाने वाला उसके पास आया कि अपना टिकट बनवा लो, कहां से कहां तक जाना है, उसने जेब में हाथ डाला तो जेब कट चुकी थी। वो बेचारा परेशान हो गया। उसने टिकट बनाने वाले से कहा, साहब मेरी जेब कट चुकी है, मैं कैसे टिकट बनवाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। टिकट बनाने वाला भड़क गया, जो टिकट कलेक्टर था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी तरह के 10 लोग सुबह शाम इसी तरह से आते हैं और कहते हैं पैसा नहीं है, जेब कट गई। ये सब नहीं चलेगा, या तो टिकट बनवाओ या उतरो। धक्के मार के उतार देंगे बस से। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, आप एक आदमी से इस तरह बात नहीं कर सकते, टिकट बनाना लीजिए, मैं पैसा दूंगा, आप टिकट बनाइए। बस में बैठी हुई सवारियां उस पीछे वाले आदमी के लिए ताली बजाने लगी। बाद में पता चला कि जेब उसी ने काटी थी। बिल्कुल भाजपा का यही हाल है, बिल्कुल यही हाल है। ये आपके सामने आकर के आपका बनने की कोशिश भी करेंगे और बाद में पता चलेगा कि आपके नीचे की जमीन भी इन्होंने खींच ली है।
इसलिए मैं कलकत्ता बंगाल के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि भले ही 51 साल हो गए हम सत्ता में नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के लहराते हुए झंडे इस बात के सबूत है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हैं। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अगर कोई एक आवाज ईमानदारी से लड़ रही है तो उस इंसान का नाम है राहुल गांधी। हम सारे लोग उनके सिपाही हैं। ये बीच में जो इधर उधर भागे गए, मीडिया के साथी मुझसे पूछते हैं इमरान साहब वो भाग गए, सिंधिया भाग गए, फलाने छोड़ के चले गए। हमने कहा भाई लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बचानी थी, चले गए थे, जाने दो। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बड़ी है, हमें पता है उनके पास ताकत है, उनके पास हुकूमत है, एजेंसियां हैं, पुलिस है, सब कुछ है, लाठी है, लेकिन हमारे पास हौसला है, हमारे पास देश को आगे ले जाने का जज्बा है। और ये जो तिरंगे में 3 रंग है, इस रंग को बचाने का जज्बा भी हमारे अंदर है, क्योंकि हमें पता है ये देश हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, दलितों का, आदिवासियों का, सबका है, किसी एक का नहीं है। इसको सींचने में, इसको आजाद कराने में एक एक इंसान ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है, तब देश बना है, तब बंगाल बना है। ऐसे में साथियों, मुझे आपसे ये कहना है, सबसे पहली बात तो आप इस बारिश में भी आए। मुझे प्रकाश जोशी जी ने, शुभंकर जी ने जब कहा कि आना है, उधर पार्लियामेंट चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा है पूरी दिल्ली में, मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे छोड़ दें, लेकिन रात के 12:30 बजे तक इनसे बात होती रही और प्रकाश जी ने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। और मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के आया और अभी भाग करके फिर वापस जाऊंगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रही है। हम सारे लोग इस समय हर महाज पर लड़ रहे हैं। आप मुझे मेरी शायरी की वजह से पहचानते हैं। आप जानते हैं कि खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया, तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे, बल्कि आपके आंसुओं के लिए नज्म लिखी, आपके दर्द को गुनगुनाने का हौसला दिखाया। और पूरी ईमानदारी से यह भी कहता हूं बंगाल वालों कि जब आपकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका दिया, तो मैंने वहां खड़े होकर के हाकिम की आंख से आंख मिला करके आपके मुद्दे उठाए। मैंने खड़ा होकर के प्रधानमंत्री से कहा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं लगातार देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं। यहाँ ईशा खान चौधरी भाई बैठे थे, वो लोकसभा में लड़ते रहते हैं, हम राज्यसभा में लड़ते रहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं आपसे बात करने के लिए, तो इन्हीं लम्हों में हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जिन बच्चों के सर फोड़े गए थे उनको देखने के लिए खड़े हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं साथियों, नारा दिल्ली तक जाना चाहिए, इतने नारे से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जज्बा जरूरी है। याद रखना बंगाल वालों, दुनिया में क्रांति हमेशा एक कोई गांधी खड़ा होता है दुनिया के किसी हिस्से में, और जमाना उसके पीछे चल पड़ता है। ये मत सोचना कि तुम 51 साल से सत्ता में नहीं थे, ये मत सोचना कि तुम्हारी तादाद कम है, ये मत सोचना कि पुलिस की लाठियां किसी और के हाथ में है, किसी और के इशारे में है। बस ये याद रखना कि जिस दिन तुम कांग्रेस का झंडा लेकर के अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने चौराहे पर जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओगे, उस दिन दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक सरकारों को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये बात याद रखना। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इख्तियार पर बैठे हुए लोग जो डेली बड़ी बड़ी बातें कर रहे
है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये कहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। हम कांग्रेस में हम तब नहीं डरे जब हमारे 13 नौजवानों को गोलियों के साथ शहीद कर दिया गया और हमारी लाशों पे खड़े होकर के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे, लोग उन्हीं लोगों को राज्यसभाएं देते रहे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों, हाँ तरन्नुम में भी बोलेंगे, काहे परेशानी, सब बोला जाएगा, अब तो सिलसिला चलता रहेगा। ये तो हम आते रहेंगे आपसे मिलते रहेंगे। आज कलकत्ता आए हैं, प्रकाश जोशी जी कह रहे थे, शुभंकर दादा कह रहे थे कि आज तो हम कलकत्ता आए हैं। इसके बाद पूरे बंगाल के अलग अलग राज्यों में जब भी कांग्रेस पार्टी आवाज देगी, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच में आपके जुल्म और सितम पर खड़ा होने का काम करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। और पार्टी ने बहुत सोच समझ कर प्रकाश जोशी जी को आपके बीच में प्रभारी बना कर भेजा। मुझे लगता है एक और जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करिए। राहुल जी ने बहुत भरोसे के साथ उनको आपके बीच में प्रभारी बना करके भेजा है। और ये याद रखिएगा, बैसाखियों पे चलने के दिन चले गए। प्रकाश भाई अब किसी बैसाखी में नहीं चलना है, न हम सफर का किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत दिन बैसाखियों पर चल लिए, अब हम अपने मजबूत पैरों पर चलेंगे, अपने हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाएंगे और ये अहद लेंगे कि आने वाले 5 साल में बंगाल की सत्ता में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है। ये टारगेट लेकर के हम लोगों को चलना है। और जब चलेंगे तो न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा और जरूर निकलेगा। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एकजुट रहिए, आपस की नाइत्तेफाकियां खत्म करिए। पार्टी के सभी नेताओं से भी मेरा अनुरोध है कि आपस में लड़ना बंद करिए, एकजुट होकर के एक ताकत बन करके खड़े होइएगा तो आप बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर आप एक ताकत बन करके रहे तो आने वाले दिन में हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं यहां भाषण दे रहा हूं, पीछे चचा खड़ा होकर अंजना को याद कर रहे हैं। बंगाल की मिट्टी की तासीर भी थोड़ी अलग है, इसको कोई दो रहा। मैं सलाम करूंगा चचा को कि यहां खड़े होकर के भी याद कहीं और कर रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप मुझे लग रहा है थक गए, बरसात का असर है आपके ऊपर। तो जहां लोग खड़े, आप भी खड़े हो सकते हो, कुर्सी पे बिल्कुल आराम से आप बैठे हो। आपका भी जज्बा मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि वहां से आने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगे। बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है, सारे लोग बाहर घूम रहे हैं बड़ी तादाद में। इस पंडाल के बाहर भी हजारों लोग खड़े हैं, मुझे पता है। बस ये जो चारों तरफ बिखरी हुई कांग्रेस है, इसी को समेट लेंगे ना, इसी को एकजुट कर लेंगे ना, तो कांग्रेस पूरे बंगाल में दिखनी शुरू हो जाएगी। आज उसकी शुरुआत हुई है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। इख्तियार में बैठे हुए लोग जो अंट बंट शंट बोल रहे हैं ना, उनके नाम इसलिए पढ़ता हूं, आपकी जबान बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मौसम और सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। बहुत पैनी नजर रखनी है, बहुत समझदारी और होशियारी के साथ इस मुल्क में, बंगाल में सियासत करनी है। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये आते हैं कहते हैं 70 साल का हिसाब है कांग्रेस, जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब। बिल्कुल इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं। 11 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी में पहुंचा दिया इन्होंने।
कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। कल एक बच्चा मिला मुझको, प्रकाश भाई, दिल्ली में। उसने कहा मोदी जी ने सारे इंस्टीट्यूशन बेच दिए। हमने कहा हाँ बेच दिए। तो उसने कहा मोदी जी की खासियत आपको पता है? हमने कहा क्या? बोले जब वो बेचते हैं तो हजारों करोड़ का बेचते हैं, खरीदते हैं तो सिर्फ 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदते हैं, सिर्फ 10 रुपए की। ये फर्क है इस सरकार और सरकार के नेताओं में कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पे खड़ा हूं कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। यही है मेरा भारत, यही है बंगाल, जहां तमाम धर्म, तमाम संस्कृतियां, तमाम लोग एकजुट होकर के मिलजुल के रहते हैं। कि हमने जमजम दिया, आप गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो 2 लाइन है वो कांग्रेस पार्टी का पूरा किरदार बोलेगा उन 2 लाइनों में, और आपकी तालियों का शोर पूरे बंगाल में जाना चाहिए। कि हमने जमजम दिया, आप गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। राहुल गांधी, यही जज्बा बरकरार रखना है। प्रकाश भाई आप एक मिनट इधर है, शुभांकर दादा इधर है। ओ फोटो कबाड़, ओ फोटो कबाड़, हेलो हटिए ना। देखिए मुझे पता है आप इस राज्य से हैं, वहाँ के लोगों को व्यापार आता है बहुत अच्छा। एक ही दिन में सारा नहीं सुना दिया जाएगा ना, अगली बार भी आएंगे ना। अभी तो बार बार अलग अलग जगहों पे आना। अभी तो मेहताब भाई के यहाँ जब फरक्का गया था तो मैंने वहां भी वादा किया था कि चुनाव जीत जाएंगे तो मैं आऊंगा। तो अभी तो रानीनगर भी जाना है, मुर्शिदाबाद भी जाना है, मालदा भी जाना है। चौकीदार क्या है ये तो पूरे देश को पता चल गया है। ये तो जब से राहुल जी ने कहा तब से पूरे देश को पता चल। चाय वाले से बड़ा प्यार है इनको, कलकत्ता की चाय बहुत अच्छी होती है ना। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय, देखिए कविता की खूबसूरती यही होती है, शायरी की खूबसूरती यही होती है कि आप नाम मत लीजिए, जनता समझ जाती है। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है?
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बंगाल वालों, मुझे वापस जाना है और देश की पार्लियामेंट में पहुंच करके तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाना है। दिल्ली की सड़कें हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन आपसे यह भी कहना चाहता हूं साथियों कि यूनिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एकजुट होइए और भले ही 51 साल हम सत्ता में ना रहे हों, लेकिन मुझे यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का वर्कर बंगाल के छोटे छोटे गांव में आज भी मौजूद है। मुझे यह भी पता है कि इन 51 सालों में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे यह भी पता है कि आप सत्ता में नहीं थे तो आपने कोई काम नहीं किया, पैसे नहीं कमा सके। हमें ये पता है कि आपने कांग्रेस के झंडे को अपने हाथों में पकड़ने का काम किया है। आपकी पूरी उम्र निकल गई, आप विधायक नहीं बन सके, आप काउंसलर नहीं बन सके, आप सांसद नहीं बन सके, और न जाने कैसे कैसे लोग मलाई काटते रहे जो उस बात के हकदार भी नहीं थे। लेकिन मेरे भाई, हर चीज की एक इंतहा होती है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आपके सत्ता से बाहर रहने की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अब एकजुट होइए। अब ये आने वाले जो 4.5 साल है ना, ये उम्मीद के 4.5 साल है, ये हौसले के 4.5 साल है, ये जज्बे के 4.5 साल है। अगर आज से आपने शुरुआत कर दी, आज से आपने अहद कर लिया कि आने वाला दिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी का दिन है, तो ये जो नफरत की बातें करने वाले लोग हैं, ये अपने आप धीरे धीरे किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हम जिसके सिपाही हैं उसका नाम राहुल गांधी और मोहब्बत का मसीहा है। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, याद करो वो दिन बंगाल वालों जब 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के एक इंसान ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं उस इंसान के कंधे से कंधा मिला करके, प्रकाश जोशी चले हैं उस इंसान के कंधे से कंधा मिला के, शुभंकर का चले हैं, अंबाजी चली है, दीपा दास जी चली है। मैं जब उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, यहां मेरी नई नस्लें मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है। हमने अपनी आंखों से भगत सिंह को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से अशफाक उल्लाह खान को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से महात्मा गांधी को नहीं देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा है, लेकिन हमने इस दौर के गांधी को देखा है जिसका नाम राहुल गांधी है, और उसके साथ खड़ा होना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक भाजपा के नेता ने मुझसे कहा कि राहुल जी 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? हमने कहा राहुल गांधी ने इस बार लंबा टास्क चुना है। राहुल जी जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया है। और मुझे फख्र है अपने उस नेता पर जो ये कहता है कि इलेक्शन जीतूं या हारूं, इलेक्शन में वोट लेने के लिए कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। इसलिए आप सारे लोग भी आइए वापस कांग्रेस की तरफ, आइए अपने पुराने घर में, वो पुराना घर जो आपके पुरखों का घर है, वो पुराना घर जहां इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा।
गुजारिश कर रहा हूँ कि वापस आइए और आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने 2 एमएलए कांग्रेस पार्टी के जिताए, मेहताब शेख साहब और जुल्फिकार साहब। ये असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। तादाद भले ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की ज्यादा है, लेकिन जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला लड़ता है, तादाद से क्या होता है। ये लड़ेंगे आपके मुद्दे पर, और हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये यहाँ आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। और बंगाल की कोई भी घटना होगी तो देश की पार्लियामेंट में आपका भाई, आपका बेटा इमरान प्रताप गरीब खड़ा होकर के उन मुद्दों पर लड़ेगा, राहुल गांधी जी उन मुद्दों पर लड़ेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं साथियों। क्योंकि वापस जाना है, इसलिए आखिर में बस आपसे ये कह के, हाँ एक बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई, वो बात मैं जरूर आपके सामने कह देना चाहता हूँ साथियों। अभी आपके दिमाग में ये बात आती है कि सिर्फ 2 विधायक है, हम तो मुट्ठी भर लोग हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार 1 आदमी 4 आदमी को जोड़ने से क्या हो जाएगा। एक आखिरी बात सुनना और इस बात को अपने घर लेकर के जाना। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे थे, जैसे आज नफरत की आग लगी है चारों तरफ। और कितने जानवर छोड़ के भाग रहे हैं, देख रहे हो ना, कितने भाग रहे हैं। शाम में कुछ और बयान, सुबह देखो तो कुछ और। बिल्कुल नफरत की आग जंगल में। एक नन्ही सी गौरैया होती है ना, छोटा सा परिंदा, बहुत छोटा सा, वो भी जंगल में लगी हुई आग को देख रही थी। उस आग में उसका आशियाना भी, उसका घोंसला भी जल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो उड़ के पड़ोस में जंगल था, वहां एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आ सकते थे, उसने 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी ले आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी लाई। जब ये करते करते वो थक गई तो पड़ोस में जो जंगल था उसमें एक पेड़ की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी। तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना। गौरैया ने कहा, मुझे ये पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए ये नफरतों की आग बुझाने का दिन है। हम सियासत में क्यों होते हैं? मुझे तो खुदा ने सब कुछ दिया था, शोहरत भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी, दौलत भी, लेकिन अपनी रातों के दिन का सुकून छोड़ करके गलियों गलियों खाक छानता क्यों घूम रहा हूं, क्यों पसीने पसीने होकर के आपके दरमियान खड़ा हूं? इसलिए क्योंकि मुझे पता है इस देश का संविधान भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सबको जंगल की आग बुझाने के लिए, नफरत की आग बुझाने के लिए कोशिश करना है। आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वादा है जब भी वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी, हमारा अल्पसंख्यक विभाग प्रकाश जोशी जी, हमारे चेयरमैन शमीम जी, आपके पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी, दीपा दास जी, जब भी आवाज देंगे एक आवाज पर आपके बीच में आने की कोशिश करूंगा, आऊंगा, ये आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभंकर सरकार, इमरान प्रताप बोलिए, दीपा दास बोलिए, शुभंकर सरकार, शुभंकर सरकार, जोर से बोलो, আমরা বছরের মধ্যে আমরা বিগে এখানে শহীদ বিজয় আমরা প্রোগ্রাম করতে পেরেছি, যার নেতৃত্বে সেই শুভঙ্কর সরকার, শুভঙ্কর সরকার, শুভঙ্কর সরকার। এখন আমাদের সামনে আমাদের পরিষদীয় দলনেতা তিনি ধন্যবাদ জানাবেন জুলফিকার জি,
আজকে আপনাদের সামনে চেয়ারম্যান কয়েকটি কথা বলছি। আমি এখনই জানবে এই যে গান্ধী লোকটা তারপরে দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রশ্ন করে 21 জুলাই আমরা এখানে মিটিং করছি বা একটু আগে আপনার আমার খবর 20 বছর বয়স মাত্র 20 বছর আমি আমাদের কর্মীদের বক্তব্য আগে বেরিয়েছে প্রধান কথা রয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী 21 জুলাই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বিধানসভা পেশ করেছেন। আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। তার সঙ্গে আরেকটাও রয়েছেন যে আপনারা তো ক্যাবিনেটের মিনিস্টার ছিলেন, আপনি তো তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, তখন তো বলেন যে এটা আমরা তোদের সঙ্গে গরিব মুক্ত ভবনটা চেয়েছি। আর 21 জুলাইয়ে বলুন যেখানে বলা হয়েছে আর কিছু লাগবে স্যার চাইলে আবার এফআইআর করতে হবে। এবার বেরাই আমরা প্রধান সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি গরিব মুক্তের বিরুদ্ধে আমরা এফআইআর করবো, আমরা সবাই এফআইআর করবো। এটা প্রমাণ কথা। এবার আপনাদের সামনে ধন্যবাদ দেবে, তারপরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হবে। এবার আমাদের পরিষদীয় দলনেতা, আমাদের দুজন বিধায়ক, একজন সহকারী নেতা মোতাজ সাহেব এবং আমাদের পরিষদীয় দলনেতা জুলফিকার জি, তিনি আজকের এই মিটিং যে আপনারা কষ্ট করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের বুক পাইছে আমাদের এই 21 জুলাই আমাদের যে কংগ্রেসের সমস্ত কর্মী এবং নেতা কর্মীদের সকলকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার সবাইকে আমরা বলছি দাঁড়িয়ে দান, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হবে। আমি ইমরানজির কাছে আবেদন করব, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হবে, তারপরে প্রেসকে বাইক দেবেন। প্রেসের বন্ধুরা বাইক লাগবে না আপনারা সাজিয়ে নিন, তারপরে সবাই বলবে না আপনার খাবার নিয়ে স্যার আপনি আছেন, তুমি আসছে, এবার স্টেজটা দেখো সব উঠে গেছে। পুলিশ অলরেডি বলে গেছে মাটি নরম আছে, স্টেজ ঢুকে যাবে। কার বসে আছে ইমরানজি আপনারা এবার ফাঁকা করুন। এবার ফাঁকা করুন, মঞ্চ ফাঁকা করুন। অনেক হয়েছে অনেক সকাল 6টা থেকে সবাই শেষে বেরাবো। সবাই এটা বন্ধ করো।